أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اس کتاب میں سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر آمین۔ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی خیر و برکت سے ہماری دین اور دنیا کے سب کاموں کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک پیئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز اینڈ قرآنک آرڈر ہماری سیریز چل رہی ہے۔ الحمدللہ ہم سورہ ہود کے بیچ میں ہیں بالکل۔ سورہ ہود جیسا کہ اب آپ کو تھوڑا سا پتہ ہے کہ ہم نے بات کی تھی کہ سورہ ہود کا 3 کیٹیگریز میں اگر ہم اسے ڈیوائڈ کرا تھا تو اس کا ایک انیشیل پارٹ ہے، ایک انیشیل تقریر ہے اس کی، جس میں کہ ایک تمہید باندھی گئی ہے، جس میں کہ ایک جو سورہ کا تھیم ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کنزیکٹیولی 7 اسٹوریز ہیں سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کے انبیاء ہیں ان کے متعلق، اور خاص طور پر ان انبیاء کے متعلق جن کی قوموں نے نافرمانی کی، بات نہیں مانی، اور پھر اس بات نہ ماننے کے نتیجے میں ان کے اوپر کیا عذاب آیا۔ تو اس میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری کر چکے ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام کی سٹوری ہم کافی دیر سے کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا آج سورہ ہود کا جو ہے یہ 5th 6th پارٹ ہے۔ تھوڑا سا جسٹ کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں تو ذرا تو اچھا ہے، تھوڑا سا تازہ ہو جاتی ہے۔ ایک چیز ہم نے بات کی تھی کہ سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 7 جگہ پر ہے، اور اس قوم عاد جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کہلاتی تھی، عاد کے لوگ جو کہلاتے تھے، عاد جو ہے بیسیکلی ہم کو پتہ ہے کہ جیسے قوم عاد جو تھی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اگر ہم بائبل کا کی معلومات کو اتھینٹک جانیں اور اسی سے اپنی ریفرنس لیں تو انہوں نے تو باقاعدہ جنریشنز کے نام تک لکھے ہیں، ان کی عمریں تک لکھی ہیں، ان کی تاریخ پیدائش تک لکھی ہے۔ بٹ اگین کہ وہ کتنا اتھینٹک ہے اس میں ہمارا ایک ہم اس کے اوپر فل فلیج بلیو نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ہے کہ عاد جو تھے وہ حضرت سام علیہ السلام جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی نسل میں سے تھے۔ ان کی کچھ جنریشنز کے بعد ایک وہاں پر جو ان کے بیٹے ہوئے ان کا نام ارم تھا۔ اب ہم لاسٹ ٹائم یہ بات کر رہے تھے کہ اب ہمارے ہاں فی زمانہ خواتین میں ہمارے ہاں کلچر میں ہے کہ ہم نام ارم رکھتے ہیں اور جنت سے اس کا مطلب لیا جاتا ہے، لیکن اس وقت وہ ان کے صاحبزادے کا نام تھا، اور انہی ارم کی اولاد میں سے یہ عاد تھے، اسی لیے قوم عاد بھی کہا جاتا ہے، نیشن آف ارم بھی کہا جاتا ہے، سٹی آف ارم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہیں سے تمام چیزیں شروع ہوئی تھیں۔ تو یہ ہم ریکیپ میں چل رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ ہم قرآن کریم کے اگر آپ پچھلے سیشنز جو ہیں اس کو دیکھیں تو ہم نے تمام وہ تمام ریکارڈ اکٹھے کیے ہیں، وہ تمام آیتیں اکٹھے کی تھیں اور ان کے نمبرز دیکھے تھے کہ جہاں جہاں پورے قرآن میں قوم عاد کا اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اگر ان تمام آیتوں کو ہم ترتیب سے کریں، کیونکہ جیسا کہ ہم یہ بات بہرحال ڈسکس کر چکے ہیں کہ قرآن میں جو آیتیں کسی بھی واقعے کے متعلق آتی ہیں وہ اس وقت اس صورت میں اس موقع کے اوپر کیا چیز ڈسکس کی جا رہی ہے، تو کسی بھی واقعے کی اس مناسبت سے اس سچویشن سے جو بات مناسب ہے وہ وہاں ڈسکس کی جاتی ہے۔ قرآن جو ہے بک آف اسٹوریز نہیں ہے، وہ ترتیب سے کرونالوجیکلی کہانی کو بیان نہیں کرتا، لیکن ان تمام آیتوں کو جمع کر کے اگر ہم ایک لائن اپ کریں کرونالوجیکلی، اس ترتیب سے کریں کہ کیا کیا اتھینٹسٹی کے ساتھ ہم کو بات ملتی ہے قرآن کے حوالے سے قوم عاد کے بارے میں، تو ایک سب سے پہلی آیت جو سورہ احقاف میں ہے، میرے خیال میں ہم اس کو سب سے پہلے نمبر 1 رکھ سکتے ہیں، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ قوم عاد کہاں تھی، تو وہ احقاف کے علاقے میں تھی۔ ہم بہت ڈیٹیل میں وہ پچھلے 2-3 سیشنز میں کر چکے ہیں، میپس ویپس دیکھ کر کہ وہ احقاف کا علاقہ کہاں تھا۔ وہ رب الخلیل، دا ایمپٹی کوارٹرز، یمن اور عمان کا جو علاقہ ہے بالکل ساؤتھ آف کیا کہتے ہیں سعودی عربیہ میں، یہ سیکنڈ پکچر میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اسی علاقے میں اسی علاقے کو ریفرنس کیا جاتا ہے سٹی آف ارم، لاسٹ سٹی آف ارم، اور قوم عاد اور احقاف کا علاقہ یہ کلیئرلی قرآن میں موجود ہے۔ اس کے بعد وین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی قوم عاد کب تھی، کس زمانے میں تھی، اس کے متعلق بھی ریفرنس ہمیں قرآن سے ہی مل جاتا ہے۔ سورہ آراف میں ہے، آیا نمبر 69 میں سوری، جس میں کہا تھا من بعد قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئی، تو یعنی یہ ایک ریفرنس بھی ہم کو مل جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کلیئر کٹ، یعنی یہاں پر کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ یہ قوم کب ہوا کرتی تھی۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں اس کا وجود ہوا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بائبل سے یا اور مختلف جو پرانی ہسٹورک بکس ہیں اگر ہم وہاں سے دیکھتے ہیں تو ایک قریباً ہم کو ملتا ہے کہ شاید یہ کچھ
6 या 7 जनरेशन 5, 6 या 7 जनरेशन के बाद इस कौम का मामला जो है वो आया था और उसके बाद ये दुनिया के पर्दे पर ज़हूर पज़ीर हुई थी। तो ये बात बहुत क्लियर हो गई, ये कौम आद जो है वो कौम नूह की नस्ल हो गई। फिर सेकंड बात जो हमें कौम आद के मुतालिक मिलती है वो सूरह नजम में आया नंबर 50 में है आदुल ऊला। क्योंकि आद जो है वो एक बेसिकली बाद में अरबिक नेम ही रहा होगा क्योंकि उस ज़माने में उस सरज़मीन के ऊपर ये नाम आया था और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कई बार हम एक ही शख़्स का नाम बाद में रिपीट होता है, तो एक और इलाका, एक और जगह तारीख़ में आदुल ऊला के आद के नाम से मशहूर रही, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कुरान ने खुद स्पेसिफ़िकली आदुल ऊला का ज़िक्र किया। ऊला माने अव्वल यानी पहले आद। तो जो कौम समूद है जिसका ज़िक्र अब इसके बाद वाली स्टोरी में आएगा इंशाअल्लाह ताला जब हम कौम आद की स्टोरी ख़त्म कर लेंगे, तो जो सेकंड कंसेक्युटिव स्टोरी आ रही है सूरह हूद में, वो कौम समूद की स्टोरी आ रही है। और समूद को भी कहते हैं कि वो सेकंड यानी सेकेंडरी आद थे, सानियतन आद थे क्योंकि वो आद ही की नस्ल में से थे। लेकिन ये आदुल ऊला हैं यानी पहले वाले आद हैं। तो इस तरह से एक ये भी बात पता चल गई है कि ये फर्स्ट जनरेशन है आद की। और फर्स्ट जनरेशन के हवाले से जब पता चल गया तो हम थोड़ा-सा एक बॉल पार्क रफ़ आइडिया लगा सकते हैं। जैसा कि अगर आपको याद हो हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक तो फिर भी हमको कुछ न कुछ हवाले से एक तारीख़ को या वक़्त को मुतय्यन करने का एक सेंस मिल जाता है कि एक अराउंड जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना है वो आज से एज़ ऑफ़ राइट नाउ जिस वक़्त हम इस दुनिया की सरफ़ेस पे एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, तो आज से करीबन 5000 साल, साढ़े 4000 साल या उसके अराउंड का टाइम है। तो हज़रत जो ये नूह अलैहिस्सलाम है ज़ाहिर है वो तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी बहुत पहले हैं और ये कौम आद, कौम समूद ये सब भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले जो है वो कौमें हैं। इसका मकसद ये हो गया कि करीबन जो कौम आद का टाइम अगर हम एक रफ़ कैलकुलेशन में जाएँ तो वो 6000 साल पुराना है आज से लेकर या अगर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या बीसी जिसे कहते हैं बिफ़ोर क्राइस्ट तो बिफ़ोर क्राइस्ट से कैलकुलेट करें तो 3000 इयर्स बिफ़ोर क्राइस्ट का ज़माना है, जो कि अंदाज़न क्योंकि ज़ाहिर है हम इतनी पुरानी बात कर रहे हैं और मतलब यहाँ ऑथेंटिसिटी भी बड़ी क्वेश्चनेबल है। तो ये तकरीबन अराउंड वो ज़मा 6 5000 से 6000 साल पुराना ज़माना है। आपको याद होगा अभी बहरहाल ये हमें इस वक़्त के हवाले से एक बात जो है वो आगे भी आएगी। अबाउट देम तो बेसिकली क्या-क्या बताया है कुरान ने हमें कौम आद की स्टोरी के मुतालिक। अब बेसिकली अगर हम देखा जाए जब मैं ये तमाम शवाहिद जमा कर रही थी और देख रही थी, तो इट्स अ प्रीटी गुड अमाउंट ऑफ अ डिटेल जैसे हम हमेशा पर सोचते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और फ़िरौन की कौम के मुतालिक काफ़ी ज़िक्र मिलता है। लेकिन ये जो कौम आद का ज़िक्र है ये काफ़ी बिखरा हुआ है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया 24 जगह कुरान में ये ज़िक्र नाम के साथ आया है। अमूमन आद और समूद की कौमों का ज़िक्र साथ आता है या अकेले भी आया है या बाज़ जगह ऐसा है कि नाम तो मेंशन नहीं किया गया लेकिन उन बर्बाद हो जाने वाली कौमों का जहाँ पर रेफ़रेंस आया है, जहाँ बर्बाद हो जाने वाले जिन लोगों के ऊपर अल्लाह का गुस्सा नाज़िल हुआ है, जहाँ उन कौमों का रेफ़रेंस आया है तो वहाँ पे भी उसी से मुराद है। तो व्हाट अबाउट देम? कुरान स्पेसिफिकली कुरान से हमको क्या मिलता है कि वो क्या कैसे लोग थे? तो सूरह शुअरा की आयत नंबर 130 में आया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि जब वो तुम किसी को पकड़ते हो तो ज़ालिमाना तरीके से पकड़ते हो यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल यानी वो जो लोग थे वो बड़े ताकतवर थे और ज़ाहिर है उनकी उनकी किसी दूसरे को क्रश करने में, किसी दूसरे के साथ मुकाबला करने में उनको बड़ी एक फ़ज़ीलत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता फरमाई थी कि वो बहुत क़ुव्वत और ताकत रखते थे। तो ये इस आयत से हमको पता चलता है कि जब तुम किसी को पकड़ते हो तो बहुत मज़बूती से पकड़ते हो। फिर उसके बाद एक और आयत में हमें इसी सूरह शुअरा ही की आयत नंबर 133 और 134 में है कि हमने तुमको चापायों से, औलाद से और बागों से तुम्हें मदद दी, यानी बहुत हरे-भरे, लाइफ़ स्टॉक, इकॉनमी उनकी ज़बरदस्त, बेतहाशा उनके पास माल-ओ-दौलत था। फिर उसमें ये है कि यही बात उनके मुतालिक बयान की गई कि जो वो थे बड़ी-बड़ी, ऊँची-ऊँची पहाड़ों के ऊपर वो एक बहुत महल बनाया करते थे, जिसकी ख़ास निशानी ये थी कि उसमें वो बड़े-बड़े पिलर्स बनाते थे और बड़े-बड़े महल उसके ऊपर बनाते थे और वो महल जो थे वो उनके रहने के लिए नहीं थे। इट्स जस्ट टू रिप्रेजेंट्स देयर
पावर, देयर एरोगेंस, उनकी अपनी बड़ाई, तकब्बुर, उनका एक शोशा, एक जो एक रियाकारी थी वो उसके लिए वो बनाते थे। उनके रहने की जो चीज़ें थी वो अलग थी। यानी ये 2 बातें इससे ज़ाहिर होती हैं। एक तो ये कि वो बहुत एक्सेसिव हेल्थ थी उनके वेल्थ थी उनके पास। ज़ाहिर-सी बात है कि इतनी एक्सेसिव वेल्थ जब है तो उसका करे क्या इंसान? और फिर उनका माइंडसेट भी उसी तरफ था कि वो सिर्फ़ अपना एरोगेंस शो करना चाहते थे कि जब कोई गुज़रने वाला कहीं से गुज़रे और वो देखे अच्छा ये महल किसने बनाया है? अच्छा उससे भी अगली टीले पे गए तो उससे ऊँचा महल किसने बनाया है? यानी वो जो दुनियावी ऊँचाई का जो एक एक क कैल वो क्या कहना चाहिए एक मेयार है, वो उसको उसके ऊपर रेस करते थे और ये बात कहने की अब इस वक़्त ज़रूरत नहीं है कि फ़ी ज़माना टॉलेस्ट टावर किस मुल्क में टॉलेस्ट टावर है, किस मुल्क में टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो ये इस बात की ये अगेन बिल्कुल सेम लाइन्स हैं कि एक तो उनके पास एक्सेसिव है वेल्थ है, उनको ये पता नहीं कि हम इस एक्सेसिव वेल्थ का करें क्या? और दूसरी बात ये कि उनका माइंडसेट इंतहाई डिस्ट्रक्टिव और बहुत ही नॉन इंटेलेक्चुअल है। तो ये कौम आद की एक बयान की गई कैरेक्टरिस्टिक आया नंबर 129 की सूरह शुअरा में अबाउट कौम द नेशन ऑफ आद। फिर सूरह फजर में हम पहुँचे थे और वहाँ तक ये बेसिकली अब तक हम का हमारा रिकैप हमने किया है ये। सूरह फजर में उनके मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया जो नस्ल इरम से थे और सतूनों वाले थे, इरम ज़ातिल इमाद। इरम ज़ातिल इमाद, इमाद मतलब वो सतूनों वाले, पिलर्स वाले। और इनके जैसा शहरों में कोई नहीं पैदा किया गया और इस आयत की तशरीह में हमने ये बात देखी थी और डिस्कस की थी और इसके ऊपर हमारा तमाम उलमा का भी इसके ऊपर कंसेंसस है कि जब अल्लाह ने कह दिया कि ऐसी कौम कोई नहीं थी, यानी इतनी वेल्थ, इतनी ताकत, इतनी सेहत, इतनी तंदुरुस्ती जैसा कि अभी जो पहली आयत है जिसमें बताया कि मज़बूती से पकड़ते हैं, तो अहादीस शरीफ से भी और उस वक़्त की इस्लामिक रवायतों से भी मिलता है कि ये बहुत लंबे-लंबे कद थे इनके 6-6 उनके 30-30 फीट कहीं आता है, कहीं 60-60 फीट आता है। खजूर के दरख्तों से उनको तशबीह दी जाती है। जो रिवायात और कहानियाँ उनके मुतालिक मिलती हैं, उसमें ये है कि वो अपने हाथ से पकड़कर खजूर का दरख्त उखाड़ लिया करते थे और ज़ाहिर है ऐसे ही ताकतवर, तंदुरुस्त, ऊँचे, लंबे लोग थे जिनके लिए बस में ये बात थी कि वो पहाड़ों की टीलों पे चढ़ जाएँ और वहाँ जाके बड़े-बड़े महल बनाएँ। तो इरम ज़ातिल इमाद हम यहाँ तक जो कुरान में जितनी आयतें हैं, यहाँ तक हम अपने पिछले सेशंस में पहुँचे थे और उसके बाद हम कहानी में आगे बढ़ने के बजाय हमने यहाँ से थोड़ा-सा डेविएट किया था और डेविएट हमने उसमें ये किया था कि ये इरम वाले इरम के ऊपर हमने थोड़ा-सा द सिटी ऑफ इरम के ऊपर हमने थोड़ा-सा फ़ोकस किया था क्योंकि आयत सूरह अनकबूत की आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिर हमने आद और समूद को हलाक कर दिया। तो हम ये बीच का पूरा पार्ट अभी स्किप कर रहे हैं कि फिर हुआ क्या उनके साथ। लेकिन जब वो तबाह हो गए तो उसमें आयत ये कहती है कि उनके वीरान घर तुम्हारे सामने हैं। कुरान ने बताया कि वो लोग अहक़ाफ़ के इलाके में रहते थे। कुरान ने बताया कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले रहते थे। कुरान ने बताया कि वहाँ शदीद तरीन वो अमीर थे, उनके बड़े-बड़े टीलों के ऊपर महल थे और वो उनका बहुत उनका लाइफ़ स्टॉक और खाना-पीना और लेना बड़ा सल्तनत का एक इंतज़ाम था, बड़ी हाईएस्ट इकोनॉमी थी उनकी। तो ज़ा और फिर जैसा कि वो काफ का जो इलाका है वो यमन और ओमान का बॉर्डर है और वो बहरे अरब से लगता है, तो वो बहुत बड़ा ट्रेड राउट डेफ़िनिटली उस ज़माने का होगा। और जिसकी वजह से हम ये बात पिछले सेशन में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि कौम आद की जो स्टोरीज़ हैं वो यूरोप में भी मिलती हैं, एशिया में भी मिलती हैं। सो मच सो दुनिया की तमाम पुरानी एंशिएंट किताबों में हमें मिलती हैं। लेकिन कुरान ये क्लेम ये कर रहा है कि उनके वीरान घर तुम्हारे सामने हैं और वहाँ उस इलाके में एज़ ऑफ टुडे रब्बुल खलील जो है जिसको कि एम्प्टी क्वार्टर्स कहते हैं व्हिच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट डेज़र्ट इन द वर्ल्ड वहाँ कुछ भी नहीं है इस वक़्त। वहाँ एक बहुत बारीक सफ़ेद रेत का सहरा है और उस रेत की टेंडेंसी ये है कि अगर उसके अंदर कोई चीज़ भी आप डालें तो वो उसके अंदर धँसती चली जाती है। ऐसे सहरा में, ऐसे डेज़र्ट में खुद चलना भी बहुत मुश्किल है। बहुत सारे डेज़र्ट ऐसे होते हैं हम देखते हैं जिसपे कि ऊँट के ज़रिए सफ़र किया जाता है या उस पे आप किसी तरह से उस पे ट्रैवल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सहरा का मामला ये है इसीलिए इसको वीरान तरीन सहरा कहा जाता है और वहाँ के जो नेटिव्स हैं वो भी वहाँ जाने से डरते हैं। तो एक ऐसे इलाके के मुतालिक कुरान ये क्लेम कर रहा है कि यहाँ नदियाँ बहती थीं, यहाँ हरे-भरे दरख्त थे, यहाँ खूब खेतियाँ थीं, यहाँ ऊँचे-ऊँचे महल थे, ना सिर्फ महल थे ऊँचे महल थे बल्कि वो महल खुद पहाड़ों के ऊपर थे। तो कुछ ना कुछ रूइन्स तो मिलने चाहिए। पुरानी जो भी हमारी तमाम सिविलाइज़ेशंस हैं जो डिस्ट्रॉय हुई हैं, जो हमें तारीख़ की किताबों में मिलती हैं, रोमन्स हैं, ग्रीक्स हैं, बेबीलोनियंस हैं, तो वो सारे के सारे कुछ ना कुछ तो हमें उनके रेफ़रेंस मिलते हैं इस पर्टिकुलर नेशन का जिसको कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रमा रहा है कि ये उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी। इसका हमको कोई क्लू आज की तारीख़ तक नहीं मिलता था।
फ्रॉम द डे जब जब ये आयत नाज़िल हुई, और हम ये बेसिकली अभी तक हमारा रिकैप ही चल रहा है। और फिर हमने पूरा ये डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर्स में कि किस तरह इस सदी में, यानी 19th सेंचुरी में, किस तरह आकर एक एक फ़ोक टेल थी अबाउट द लॉस्ट सिटी ऑफ आज, जो कि थ्रू आउट द टाइम साथ-साथ चलती रही, फ्रॉम द पॉइंट हज़ारों साल से अरब कल्चर में वो मौजूद रही। अगरचे कि उस इलाके में सहरा था, वहाँ नज़र कुछ नहीं आता था। और अब ये बिल्कुल 1995 में वो पूरी हिस्ट्री आप पिछला लेक्चर सुन सकते हैं, उसमें मौजूद है कि किस तरह सैटेलाइट से ये डिस्कवर हुआ कि 100 मीटर्स अंडर द रबुल अल खलील का जो सहरा है, उसके अंडर 100 मीटर्स एक शहर के वो दिखाई दिए, असरात दिखाई दिए, खंडरात दिखाई दिए। अब यहाँ सो मच सो कि जो अब लास्ट पिक्चर्स आई हैं, उसमें तो ये है कि वहाँ पर उसको मज़ीद उसको जब स्पेसिफ़ाई किया गया है, उसको देखा गया है, तो उसमें सूखे हुए चश्मों के जो रास्ते हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं। यानी जब दरिया कोई सूख जाता है, तो उसका एक रास्ता-सा बन जाता है। अगर हम ज़मीन पे कहीं जाएँ, हमें नज़र आता है कि ये एक ऐसा ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा है, एक रास्ता-सा है, जहाँ की ज़मीन इस तरह की है कि देख के समझ आता है कि कभी यहाँ से पानी गुज़रता होगा। लेकिन अब वो सूख चुका है। तो वो जो स्ट्रीम बेड्स हैं, वाटर स्ट्रीम के जो वो बेड्स नज़र आए हैं इस सैटेलाइट में, उसको जब कैलकुलेट किया है माहिरीन ने, तो वो अंदाज़न 5 से 6,000 साल पुराने हैं वो वाटर स्ट्रीम बेड्स जो हैं। तो उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये वही शहर है जिसका ज़िक्र था। और अब अल्लाह सुब्हाना तआला की ने जो ये आयत कुरान में रखी थी कि ये तुम्हारी आँखों के सामने है, तो आज उसकी पिक्चर्स आँखों के सामने हैं, आज उसका तमाम डिटेल आँखों के सामने है। ये कुरान की जो प्रोफ़ेसी है, ये वन मोर टाइम अल्लाह सुब्हाना तआला ने प्रूफ़ की है थ्रू द साइंस। यहाँ पर आगे चलने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं कर दूँ, क्योंकि हम पिछले अपने कई तमाम सेशंस में ये करने की कोशिश कर रहे हैं। एक थोड़ा-सा इस एंगल को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो कुरान की आयतें हम पढ़ रहे हैं, ओरिजिनली तो हमारी सीरीज़ दुआओं को कलेक्ट करने की और सिलेक्टेड आयतों के मुतालिक डिस्कशन करने की थी, लेकिन इसमें हम थोड़ा-थोड़ा सा अब ये साइंटिफिक डिस्कवरीज़ को भी एंटर करते जा रहे हैं। तो एक बात यहाँ पे, एक डिस्क्लेमर है, या एक क्या कहना चाहिए, एतराफ़, एक बात, इस बात को क्लियर हम समझ लें कि साइंस की तरफ से कोई चीज़ भी जब आती है और वो कुरान की प्रोफ़ेसी को प्रूव करती है, तो बेसिकली हमारा वो बिलीफ़ जो है, वो उसका ऐसा नहीं है कि उसके बगैर हमारा बिलीफ़ है नहीं। हमारा जो बिलीफ़ है, जो हमारा ईमान है, वो तो है ही ईमानुल बिल-ग़ैब, यानी अनसीन, बिलीव ऑन अनसीन का ही सारा मामला है। हम उस खुदा पे बिलीव करते हैं जो हमें नज़र नहीं आता, हम रिज़रेक्शन डे पे बिलीव करते हैं जो आज तक हमारी आँखों के सामने नहीं है। हम जन्नत और जहन्नम पे बिलीव करते हैं जो कि हमारी आँखों से ओझल है। हम हर उस चीज़ पे, हम तकदीर पे बिलीव करते हैं जिसको हमने अपने आँखों से नहीं देखा। तो बेसिकली हमारा तो ईमान ही ईमान बिल गैब है। जब हम एक बार कलमा शहादत पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पुकारते हैं, तो हम हर उस चीज़ के ऊपर ईमान रखते हैं, और वो हमारा बिलीफ है और फ़ेथ है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज़ की वज़ह से हम उसके ऊपर बिलीव कर रहे हों। साइंटिफिक डिस्कवरीज़ का मामला यहाँ पे सिर्फ़ इतना है कि इसको हम सेकेंडरी स्टेज में रख सकते हैं, हक़्क़ुल यक़ीन से ऐनुल यक़ीन वाली स्टेज पे रख सकते हैं कि जब किसी चीज़ पे, जिस पे हमारा बिलीव है, जो हमारी आँखों के सामने है नहीं, लेकिन कुरान उसको क्लेम कर रहा है, और फिर साइंटिफिक डिस्कवरी के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में या ज़माने में अगर वो चीज़ हमारी आँखों के सामने आ जाती है, तो बेसिकली वो कोइंसाइड हो जाती है हमारे ईमान के साथ, तो हमारा जो हक़्क़ुल यक़ीन है, वो मज़ीद ऐनुल यक़ीन में बदल जाता है। जैसा कि हज़रत इब्राहीम के मामले में था कि जब उन्होंने अल्लाह सुब्हान तआला से कहा कि मैं देखना चाहता हूँ आप किस तरह मौत और ज़िंदगी देते हैं, वो तमाम वाक़या सूरह बकरा में मौजूद है। लेकिन अगेन इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि ये वाइस वर्सा नहीं है। हमारे साइंस में एक रूल कहलाता है वाइस वर्सा, कि अगर फूल है तो खुशबू आएगी, और खुशबू है तो यकीनन वहाँ फूल ज़रूर होगा। इट्स नॉट वाइस वर्सा। अगर कोई चीज़ कुरान क्लेम कर रहा है और वो आज तक इंसान उसको प्रूफ़ नहीं कर पाया है, या वो चीज़ साइंस के किसी भी आइडिया से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, तो इट डज़न्ट मैटर कि हम अपने ईमान के मुतालिक मुतज़लज़ल हों। हमारा बिलीव ईमान पे ही है। हमारे बिलीव में ये है कि दुनिया में इंसान इस तरह आया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा गया। बाकायदा इंसान एक इंसानी फ़ॉर्म में ही ज़मीन के ऊपर आया। उसके हाथ-पाँव, कान, नाक, जो भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो पूरा बन चुका था जब वो ज़मीन पे उतरा। वो इवोल्यूशन के ज़रिए से, ऐसा नहीं है कि पहले सिंगुलर सेलुलर था, फिर वो 2 सेलुलर जानवर बना, फिर वो 3 सेलुलर हो गया। हम ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, हम इसको मतलब ये साइंस की तरक्की चल रही है। जैसा कि हमने अभी देखा कि पिछले 1400 साल से ये आयत कुरान में मौजूद थी कि ये तुम्हारी आँखों के सामने है। लेकिन
पिछले जो 1400 साल में जो लोग गुज़रे, उनकी आँखों के सामने नहीं था, अब हमारी आँखों के सामने आ गया है। तो बहुत सारे साइंस अपनी तरक्की के सफ़र में है, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आगे जाकर ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कोइंसाइड कर जाए किसी तरीके से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ में और इस बात में कि हाँ, जब इंसान खुद ही एक आसमान से उतरा और किसी दूसरी कायनात से आया है या जो भी कुछ है। लेकिन बहरहाल अगर कोई चीज़ आज साइंस के थ्रू हमें अ, उसका हमें सबूत नहीं मिलता तो इट डज़न्ट मीन कि वो हमारे ईमान को कोई उसमें कोई कोई मुश्किल पैदा करती है। वो साइंस अपनी जगह है। कुरान इज़ नॉट द बुक ऑफ साइंस, कुरान इज़ नॉट द बुक ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं। तीसरा रीज़न जो इस तमाम बातों को डिस्कस करने का है इस जगह पे, वो ये है कि कनेक्शन टू द रियल वर्ल्ड। एक जर्नल कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली हम जिस ऑडियंस में बात करते हैं यहाँ पर तो मज़हब को और दुनियावी तालीम को 2 डिफरेंट चीज़ें समझा जाता है। डॉक्टर बनना गालिबन सिर्फ़ एक दुनियावी तालीम है और कुरान पढ़ना सिर्फ़ दीनी तालीम है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो उसको कभी भी सेम नहीं समझा जाता। तो ये इन तमाम चीज़ों को इन साइंटिफिक डिस्कवरीज़ को कुरान की आयत के साथ रिलेट करने का एक मकसद ये भी है कि ये कॉन्सेप्ट ज़हन से ख़त्म किया जाए कि ये कोई 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। दिस इज़ ऑल द सेम थिंग। इनफैक्ट अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा ही कायनात को मुसख्खर करने के लिए है। और जो उसका चौथा पॉइंट है कि जैसे जो स्पेसिफिकली द मुस्लिम नेशन और मुस के हवाले से कि वो रिसर्च के हवाले से उसमें जो एक कमी पाई जाती है, उसकी रीज़न ही ये है कि वो समझते ये हैं कि दुनियावी उलूम वो दुनियावी उलूम हैं, हमें दीनवी उलूम हासिल कर लेना इनफ़ है और हमें दुनियावी उलूम पे तवज्जो देनी ही नहीं चाहिए। इस वक़्त राइट नाउ जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ज़ाहिर है ये एक साइंटिफिक तरक्की का ही नतीजा है और उस साइंटिफिक तरक्की के नतीजे में आज हम कितना कुरान पढ़ सकते हैं, कितनी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, कितना इल्म हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये भी पार्ट ऑफ दैट ही है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर मैंने सोचा कि इसको हम एक बात को अपने हज़ात में एक दफ़ा क्लियर बिल्कुल कर लें कि हम जितनी भी ये साइंटिफिक बात करते हैं, ये सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि हमारा ईमान बढ़े। जैसे कि हमने पीछे फ़िरौन की स्टोरी में वो डॉक्टर मॉरिस बुकेल की बात की थी कि उन जब उसके लिए वो चीज़ इतनी हैरानकुन थी और इतनी दिल को छूने वाली थी कि वो उसी वक़्त उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया, तो ये तमाम चीज़ें हमारे ईमान में इज़ाफ़ा करें। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ आद, तो हमने द पीपल ऑफ आद की बात वहाँ तक कर ली थी कि इरम ज़ातिल इमाद का क्या मामला है और वो जो सतूनों वाले थे और वो जो बड़े-बड़े सतून बनाया करते थे और वो जिनकी जन्नत थी। ये जो इमाद वाला मामला है, सतूनों वाला जो मामला है, पिलर्स वाला वो मामला जो है, ये इंशाअल्लाह ताला आज हम इस स्टोरी को अगर फिनिश कर लेते हैं, तो ये एक दफ़ा फिर आपके सामने आएगा और किस तरह सामने आएगा, लिटरली अगेन इट विल टच द हार्ट। तो फिर उनके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर क्या हुआ, इरम से आगे चल के अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके मुतालिक क्या बयान करते हैं और ग़ालिबन ये वो टर्निंग पॉइंट है कि जहाँ से उसकी जिसके बाद ये प्रोबेबली ये वो आयत है या ये वो हिंट है कुरान में कि जिसके बाद हम जो स्टोरी ऑफ आद है, फिर उसकी जो डिस्ट्रक्शन की वजह है वो समझ में आती है, वहाँ से उनका जो ज़वाल शुरू हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़ वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा। तो ये था वो पॉइंट जब वो बहुत ही उरूज पे पहुँची हुई कौम जिसके पास सब कुछ था, जब उसने ऐसा सोचा और ऐसा कहा और वो क्या था कि वो जो आद थे, वो मुल्क में गुरूर करने लगे नाहक़, बिग़ैरी हक़। एक तो गुरूर करना वैसे ही एक नेगेटिव चीज़ है, एरोगेंस पसंद ही नहीं की गई, तकब्बुर को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पसंद ही नहीं किया गया। सबसे बड़ा गुनाह जो है उसको तकब्बुर बताया गया है। शैतान के साथ जो तमाम मामला है वो तकब्बुर का मामला है। जिसको गुरूर हो जाए, जिसके दिल में ये बात आ जाए कि मैं इससे बेहतर हूँ या जो अपनी माल, अपनी दौलत, अपनी जो भी उसका स्टेटस है उसके ऊपर किसी दूसरे को हक़ीर करने लगे तो बस फिर उसको समझ लेना चाहिए अब उसका ज़वाल शुरू हो गया। तो वो तो वैसे ही बुरी चीज़ है लेकिन हक़ के साथ अब इसका मतलब है कि कोई किसी को हक़ भी हो सकता है कि वो गुरूर कर ले। तो देखने की बात ये है कि अगर किसी को हक़ हो सकता हो कि वो गुरूर कर सकता हो तो उसके पास क्या हो सकता है? यानी कोई आदमी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मशहूर तरीन आदमी हो तो वो कहे कि भई चलो कोई भी शख़्स जो है मुझसे ज़्यादा मशहूर नहीं था दुनिया में तो मैं गुरूर कर सकता हूँ इस बात ये कि आई एम द फर्स्ट। या कोई शख़्स दुनिया का अमीर तरीन आदमी हो तो वो कहे कि बाकी दुनिया के लोग जो हैं वो सब मुझसे गरीब हैं, तो मैं अमीर तरीन हूँ, तो मैं गुरूर कर सकता हूँ। भई इससे ज़्यादा और क्या क्वालिफ़िकेशन हो सकती है? लेकिन आज के मुतालिक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद ही बयान कर चुके
कि उन जैसा तो कोई था ही नहीं। तो इसका मतलब है जब वो गुरूर करने के हक़ में उनको कोई हक़ हासिल नहीं था, उनके पास कोई जवाज़ नहीं था कि वो गुरूर करें, तो फिर और किसी के पास क्या जवाज़ हो सकता है? और तकब्बुर जो और एरोगेंस जो है वो बिगेस्ट जो है वो गुनाह कबीरा में से है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद नहीं फरमाते। मग़रूर को कहते हैं कि मग़रूर को जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा वो। तो बेसिकली ये था वो पॉइंट सूरह फुस्सिलात जैसे सूरह हामीम सजदा भी हम कहते हैं, उसमें आया नंबर 51 में ये बयान हुआ कि ये मामला आया कि जब उनके फलना-फूलना, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो लोग बीमार तक नहीं हो रहे थे। तो जब इंसान को बीमारी नहीं आ रही, जब इंसान को गुर्बत नहीं आ रही, जब वो किसी दूसरे दुश्मन से मुकाबला हो रहा है तो वो उसको कुचल दे रहा है, हावी है। तो बेसिकली दुनियावी कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसी कमी उनको नहीं पैदा हो रही थी कि जहाँ उनको अल्लाह की याद आती है, और होते उनकी जब इंसान की सब चीज़ें आगे बढ़ती जाएँ, अच्छे-अच्छे घर मिलते जाएँ, अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती जाएँ, तमाम दुनिया की नेमतें उसे हासिल होती जाएँ, तो फिर ये एरोगेंस जो है ना, फिर ये उसके दिल में जगह कर ले, तो फिर वो इस बात को साबित करता है कि वो इस लायक नहीं था। और यही वजह है कि यहाँ से फिर उसका ज़वाल शुरू होता है फिर अब। तो फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो हम पर्टिकुलर सूरह हूद का इस वक़्त पैसेज कर रहे हैं, हम इसको देख लेते हैं। सूरह हूद में आया नंबर 50 से लेकर 60 10 आयतें हैं, जो जो सूरह हूद के जो इस तमाम इस किस्से से मुतल्लिक़ हैं। तो फिर हमने आद की तरफ इनके भाई हूद को भेजा, "ए कौम, अल्लाह की बंदगी करो, और इसके सिवा तुम्हारा कोई हाकिम नहीं है। जो तुम सब झूठ कहते हो, और ये काम मैं तुमसे इस पे कोई मज़दूरी भी नहीं माँगता हूँ कि जिस पर तुमने मुझे की जिस पे जिसने मुझे पैदा किया है, फिर तुम क्या समझते नहीं हो?" मतलब ये कि एक आदमी, एक पैगम्बर जो प्रीच कर रहा है, अगर वो आपसे उसके लिए पैसे ले रहा हो, आपसे उससे कह रहा हो कि अच्छा भई तुम इस प्रीच करने के बदले में मुझे अपना बादशाह बना लो, तो समझ में आए कि शायद इसका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। और ये बात एक बिल्कुल एग्ज़ैक्टली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक़्त कहा करते थे कुरैश से, जिस वक़्त की ये आयतें नाज़िल हुई हैं। तो उसके बाद हमने, आपको याद होगा कि हमने सूरह हूद के मुतालिक एक सेपरेट सेशन किया था, जिसमें हमने इन स्टोरीज़ को हमने एक रिदम में पढ़ा था, और हमने ये देखा था कि हर आने वाला पैगंबर, हर आने वाला दाई या तबलीग करने वाला अपनी कौम से कह रहा है कि इस्तिग़फ़ार करो और तौबा करो, और उसके एवज़ वो एक पर्टिकुलर गिफ्ट प्रॉमिस कर रहा है। कहीं पर बारिश प्रॉमिस हुई है, कहीं पर रिज़्क प्रॉमिस हुआ है, कहीं पर सेहतमंदी प्रॉमिस हुई है, कहीं पर कुशादगी प्रॉमिस हुई है, कहीं पर इज़्ज़त प्रॉमिस हुई है, कहीं पर जन्नत प्रॉमिस हुई है। और मोस्टली इस्तिग़फ़ार के एवज़ जो गिफ्ट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फ़रमा रहा है, उसका ताल्लुक इस दुनिया की खुशहाली से भी है, और आखिरत की तो है ही है। फिर ज़ाहिर है जब गुनाह माफ़ होंगे तो आखिरत में तो जो नसीब होगा। तो ये जो एक आयत हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने की जो इसमें आती है, वो ये है कि "व या कौमी इस्तग़फ़िरू", तुम इस्तिग़फ़ार करो, और "व रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि", अपने रब से और फिर तुम तौबा करो, यानी रुजू करो, यानी ये अहद करो कि मैं ये गुनाह दोबारा नहीं करूँगा। तो फिर वो तुम पर खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हारी क़ुव्वत को बढ़ाएगा, और तुम नाफ़रमान होकर ना फिर जाओ। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से प्रॉमिस किया है बारिश का। इससे पहले जो हमने वो वाला सेशन किया था, जहाँ, क्योंकि ये आयत जो है इस्तग़फ़िरू, ये रिपीटेडली हर हर पैगंबर कहता चला जाएगा अपनी, जितनी भी हम स्टोरीज़ करेंगे, हम देखेंगे कि हर पैगंबर अपनी कौम को ये बात कहता चला जाएगा, और वहाँ क्या-क्या चीज़ें प्रॉमिस हो रही हैं। और इसी वजह से उलमाए कराम कहते हैं कि हर चीज़ का इलाज इस्तिग़फ़ार में है। अगर आप बीमार हैं तो इस्तिग़फ़ार को बढ़ा दीजिए, अगर आप परेशान हैं तो इस्तिग़फ़ार को बढ़ा दीजिए, अगर आपको रिज़्क की तंगी है तो इस्तिग़फ़ार को बढ़ा दीजिए, कोई मामला दरपेश है तो इस्तिग़फ़ार को बढ़ा दीजिए। इस्तिग़फ़ार हर चीज़ को डील करता है। तो यहाँ पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम पर बारिश बरसाएगा। तो बेसिकली जो पिछला पॉइंट था, जहाँ हमने ज़िक्र किया कि उनकी एरोगेंस बहुत बढ़ के सामने आ गई, और जब उन्होंने ये कलाम किया कि कौन है जो हमसे बढ़कर ताकतवर हो। जैसा कि हमने कहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दिल को तकब्बुर पसंद नहीं है, और बस वो पॉइंट होता है कि वहाँ से जन्नत से शैतान को भी निकाल दिया गया। तो जब उन्होंने ये बढ़ के ये कहा कि कौन है जो हमसे बढ़ के ताकतवर हो, तो उनके अज़ाब का मामला शुरू हो गया। लेकिन तब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके ऊपर रहीम था और करीम था, और ये भी अल्लाह की सुन्नत है बाय द वे, कि अल्लाह एक बड़ा अज़ाब भेजने से पहले छोटे-छोटे वार्निंग्स देता है। अगर देखने वाली आँख और देखने वाला दिल है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो पैसेजेज़ हैं, जो हमने आयतें मेंशन की थी पिछले सेशंस में, कहाँ-कहाँ कौम आद का ज़िक्र हुआ है, उन आयतों में अगर पूरे-पूरे उन पैसेजेज़ को आप पढ़ें, तो तुम्हें बार-बार ये ज़िक्र है कि तुम्हें जो आँखें दी गई हैं, जो तुम्हें दिल की आँखें दी गई हैं, वो आँखें खोलो। और ये ज़ाहिरी आँखों से नज़र नहीं आएगा, लेकिन जिसकी दिल की आँख खुली नहीं है, वो उस चीज़ को देख नहीं पाएगा।
تو بیسیکلی ہوا یہ کہ جو پہلے ایز اے وارننگ جو ان کے اوپر عذاب شروع ہوا وہ یہ ہوا کہ جو ان کی ہری بھری کھیتیاں تھیں وہ سوکھنا شروع ہوئیں اور قحط کی سی سچویشن شروع ہوئی اور اس میں یہ ہوا کہ بارش کم ہونا شروع ہوئی، جنگل ان کے جو باغ تھے وہ سوکھنے شروع ہوئے، ان کے پھل فروٹ کم ہونے شروع ہوئے۔ ظاہر ہے جب جنگل ہریالی کھیت کھلیان سوکھیں گے تو پھر خوراک فصلیں نہیں گرو کریں گی، آپ کو خوراک نہیں ملے گی، آپ کے جانوروں کو چارہ نہیں ملے گا، آپ کا لائف اسٹاک جب ختم ہونا شروع ہو جائے گا تو ظاہر ہے بھیڑ بکری مویشی آپ کے دودھ پانی مطلب اور تمام ہر چیز میں کمی ہوتی چلی جائے گی، تو آہستہ آہستہ یہ چیز ہونی شروع ہوئی اور مختلف روایات میں ملتا ہے، کوئی کہتا ہے 1.5 سال، کوئی کہتا ہے 3 سال تک یہ تمام معاملہ چلتا رہا کہ جس میں کہ قحط کی جو سچویشن تھی وہ بڑھتی رہی اور چیزیں جو تھیں وہ خراب ہوتی رہی۔ تو اب جو قحط کی سچویشن ظاہر ہے جب بڑھی اور نظر آنا شروع ہوا کہ اب تو معاملہ ذرا کچھ پریشانی کا ظاہر یعنی پہلی چیز ان کو کوئی پریشانی کوئی پرابلم ان کے سامنے آئی، اب تک کی زندگی تو بڑی وہ والی بات تھی، راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، بڑی مزے میں گزر رہی تھی، ہر طرف فراوانی، ہر چیز کی، صحت کی، پیسے کی، روپے کی، طاقت کی، ہر چیز کی فراوانی تھی۔ تو اب جب پہلی بار کوئی پرابلم سامنے آئی تو اس کو ایڈریس کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھو یہ تمہارے خدا کی طرف سے ہے۔ وہ جو ایروگینس تھی نا کہ ہم سے بڑھ کر کون ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو پوائنٹ کیا ہے کوئی جو تمہاری ان چیزوں کو کم کرنا شروع کر رہا ہے، اب بھی لوٹ آؤ، اب بھی پلٹ آؤ۔ تو اس پر بھی آیا نمبر 53 میں اس قوم نے پلٹ کے جواب دیا کہ اے ہود! تو ہمارے پاس کوئی بھی معجزہ نہ لایا، ہم تیرے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہی ہم تجھے ماننے والے ہیں۔ بٹ اب اسٹل دے آر ان دا ایروگینس مطلب اسٹل ان کو لگتا تھا وی ول فائنڈ آؤٹ سم سولوشن، ہم تو بہت طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ ہے ہی کون۔ اور آیا نمبر 54 ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھے ہمارے کسی معبود نے بری طرح جھپٹ لیا ہے کہ اور کہا بے شک میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا شریک کرتے ہو۔ جھپٹ لیا ہے سے کیا مراد ہے؟ اور یہ اس کو ہم ایک آیت اور بھی دیکھ لیتے ہیں آگے والی 55 پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم سب مل کر میرے حق میں برائی کرو اور پھر مجھے مہلت نہ دو اور پھر میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ تو یہ پہلے سے گوئنگ بیک ٹو دیٹ کہ وہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ جھپٹ لیا ہے، تو بیسیکلی ہم یہ جان گئے تھے کہ اس زمانے میں بت پرستی انہوں نے شروع کر دی تھی، سو مچ سو کہ وہ جو ان کے بتوں کے جو وہ نام ہیں وہی نام اتنے کنٹینیو ہوئے کہ وہ بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے ان بتوں کے بھی وہی نام تھے، اس کا مطلب ہے یہ ہسٹوریکلی وہ چیز چلی آ رہی تھی۔ تو یہ جو بت جن کو وہ پوجتے تھے جب ان کے خلاف حضرت ہود علیہ السلام نے آواز اٹھائی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو ان کا جھٹپٹا پڑ گیا ہے، تم پر ان کا سایہ ہو گیا ہے، تم پر اثر آ گیا ہے۔ تو یہ ایک سائیڈ نوٹ ہے حضرت قوم عاد کی سٹوری میں سے جو اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی شاید انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بینیفیشل ہو سکتا ہے کہ جب ایک پوری کی پوری قوم ہی غلط رسم کر رہی ہے، ایک غلط ریچول کر رہی ہے، ایک غلط وہم کو پالے ہوئے ہے دل میں، ایک غلط کام کر رہی ہے کہ نہیں نہیں ایسا کرنے سے تو فلاں پیر اور بزرگ ناراض ہو جائیں گے یا فلاں قبر والا ناراض ہو جائے گا یا یہ ایسا کرنا بہت ضروری ہے یا یہ ریچول کرنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ نقصان ہو جائے گا، یہ بت اگر ناراض ہو گیا تو ہم سے یہ نقصان ہمارا ہو جائے گا۔ بت کی فارم میں تو نہیں لیکن ڈفرینٹ ڈفرینٹ فارمز میں یہ تمام چیزیں آج امت محمدیہ میں بھی رائج ہیں اور اتنی رائج ہیں کہ اگر کسی بھی انسان کا کوئی نقصان ہوتا ہے، اس کو کوئی حرج پہنچتی ہے، اس کی کوئی چیز غلط ہوتی ہے، تو اس کو دل میں یہی ڈر آتا ہے کہ ایسی ہی کسی قوتوں نے میرے خلاف عمل کرا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ایسے کوئی جن، ایسے کوئی بلائیں، ایسے کوئی اثرات اگر کوئی دوسرا میرا کوئی دشمن ہے، وہ اس کو قابو کر لے گا اور وہ ان اثرات کے ذریعے سے میرے کاموں کو خراب کر دے گا، میری جو ترقی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، میری جو سکسیس ہے وہ خراب ہو جائے گی، میری صحت خراب ہو جائے گی۔ تو ہم یہاں اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ فلاں کی نظر کی وجہ سے یا فلاں کی حسد کی وجہ سے ہمارے یہ سارے کام خراب ہو گئے یا غلط ہو گئے۔ یہ حسد کا اور نظر کا کانسیپٹ ضرور موجود ہے، کسی نے ہم پہ جادو کر دیا ہے، یہ جادو کا کانسیپٹ ضرور موجود ہے، یہ حق ہے، ہم اس پہ بلیف رکھتے ہیں۔ لیکن اگین اس بلیف کو ہم نے بالکل وہی معاملہ کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کے معاملے میں کیا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے اتنی محبت کری کہ ان کو خدا بنا دیا۔ تو نظر بھی صحیح ہے،
किसी का असर भी सही है, जादू भी मौजूद हैं, जिन्नात भी मौजूद हैं, जिन्नात के बुरे असरात भी मौजूद हैं, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अल्लाह की मख़लूक़ात में से हैं, इनमें से नाउज़ुबिल्लाह कोई अल्लाह की बनाई हुई तक़दीर के आगे नहीं है। अल्लाह ने फ़रमाया कि दुआ तो क़दर को भी क़ज़ा और क़दर को बदल देती है, यानी मौत और ज़िंदगी के लिखे को बदल देती है। तो ये सब चीज़ें भी उसी वक़्त हो पाती हैं, जिस एक लिमिट तक हो पाती हैं और उसी वक़्त हो पाती हैं जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से गुंजाइश अता फ़रमाई जाए। जब बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अल्लाह के ऊपर ईमान कामिल रखता है और ऐसे किसी तोहुमात में नहीं पड़ता है, तो वो इन चीज़ों से बेफ़िक्र हो जाता है। हमारे यहाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक कि वेस्ट में आने के बाद तो काफ़ी लोग इस चीज़ से आज़ाद हो गए हैं कुछ हद तक। लेकिन अगर बैक होम जाया जाए और उस पर्टिकुलर माशरे में, उस पर्टिकुलर ग्रोह के साथ, उस पर्टिकुलर बिलीफ के लोगों के साथ रहा जाए, तो वहाँ अच्छा भला समझदार इंसान भी इस बात से डर खाने लगता है कि पता नहीं अगर मैंने ये काम नहीं किया, ये देव नहीं चढ़ाई या ये रिचुअल नहीं किया तो शायद मुझे वो जो जिनकी इज़्ज़त के मुताल्लिक़ ये किया जा रहा है, मुझे उसमें कोई गलत बात हो जाएगी, वो नाराज़गी हो जाएगी, या जो खैर और बरकत मुझे हासिल हो रही है हर साल किसी उर्स पे जाने की वजह से, वो फिर खैर और बरकत मुझे हासिल नहीं होगी। ये सब चीज़ें जो हैं इनको समझ लेना चाहिए कि ये शिरकियाँ हैं और ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि एक अच्छे से अच्छे समझदार इंसान के अंदर भी एक ये टेंडेंसी है इस खौफ की कि कहीं ये जो अनसीन चीज़ें हैं, ये जो सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझको नुकसान पहुँचा दें। तो यहाँ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने क्या दबंग जवाब दिया है उन लोगों को जो इतने ताकतवर हैं, इतने इतने ऊँचे, लंबे, ताकतवर कि उनको देख के ही किसी के दिल पे खौफ तारी हो सकता है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी ज़ाहिर है उन्हीं के नेशन से थे, वो भी उन्हीं की तरह के होंगे, लेकिन वो एक हैं और ये पूरी कौम है उनके मुकाबले में। उन्होंने कहा कि मैं इन सब चीज़ों पे बेज़ार हूँ इनसे और मैं इन पे बिलीव करता ही नहीं हूँ। यानी उनके दिल में रत्ती बराबर इस बात पे शुबा नहीं है कि कोई ये सारे जादू, टोने, तावीज़, गलत तमाम चीज़ें, ये सारे बुरी अमलियात जो हैं वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और ये बिलीव और ये ईमान अगर लोग भी अपने दिलों में कर लें तो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सिंपल चीज़ें कुरान में नाज़िल फ़रमा दी थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ था। आप मौज़तैन पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। आयतुल कुर्सी जो है लोग उसको शायद इतना कुछ समझते हैं कि शायद ये इनफ़ नहीं है तो अब हम मज़ीद इसके ऊपर एक तावीज़ भी पहने, इसके ऊपर हम किसी कोई फलाँ से किसी बुज़ुर्ग के अंडर अम्ब्रेला अगर हम ना हों तो शायद कोई बाकी जो जो बल्लियात हैं वो हमें हर्ट कर देंगी। लेकिन बात ये है कि आयतुल कुर्सी को अगर हम पढ़ें और उसकी डीप उसकी मीनिंग्स देखें तो वो इतनी बड़ी चीज़ है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद फ़रमाया कि सरदार कुरान है। एक आयत जो है वो कुरान की सरदार है। तो फिर उससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए है? इससे ज़्यादा किसी वहम और तौहमात में पड़ना ही इंसान को गलत रास्ते पे लेके जाता है। तो यहाँ बेसिकली ये एक साइड नोट था जो इन आयतों में हमें मिला कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम में जो बुराई थी बजाय से कि वो उनसे डरते और खौफ़ खाते, वो दबंग होके हक़ और सच के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि कर सकते हो तो जो कर सकते हो वो कर लो। मुझ पर कोई चीज़ उस वक़्त तक नाज़िल नहीं हो सकती, कोई बुराई या कोई चीज़ जब तक कि मेरा रब ही ना चाहे। और उसके बाद उन्होंने बड़ी खूबसूरत आयत पढ़ी है कि मैंने इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बकुम, मैंने अल्लाह पे भरोसा किया जो मेरा और तुम्हारा रब है। यानी वो तुम्हारा भी वही रब है जिसे तुम मान नहीं रहे हो। कोई भी ज़मीन पे चलने वाला ऐसा नहीं है जिसकी चोटी उसने पकड़ ना रखी हो और बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पे है। आपको मालूम है पूरे कुरान में ऐसी कई दुआएँ हैं, इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि और रब्बना तवक्कलना, और बहुत सारी दुआएँ ऐसी हैं जिसमें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर हम तवक्कुल करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर इस दुआ के अल्फ़ाज़ क्या कह रहे हैं कि जो मेरा और तुम्हारा रब है मैंने उस पे भरोसा किया है। कोई ज़मीन पे चलने वाला ऐसा नहीं है जिसकी चोटी पकड़ ना रखी हो, क्योंकि वो उन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरोगेंस था। वो जिसको पसंद नहीं करते थे उसके खिलाफ उनके मुँह से हक़ारत के अल्फ़ाज़ ही निकलते थे और बेखौफ़ी से निकलते थे कि कुछ उसकी हक़ारत जो है उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकी। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो ये एरोगेंसी है मुझे तो ये भी इन सम सेंस यहाँ पर हम ये समझते हैं कि घमंड उन लोगों को होता है जो कुछ होते हैं या जिनके पास कुछ होता है। मुझको तो ऐसा पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ऐसा फ़ील होता है कि घमंड उन लोगों को होता है जिनको अनसिक्योरिटी होती है, कि अगर कहीं ये चीज़ मुझसे छिन ना जाए या ये चीज़ मुझसे दूर हो ना जाए, इसीलिए वो बार-बार अपने घमंड का, अपनी बर्तरी का बार-बार मुज़ाहरा करना चाहता है। वो बार-बार दूसरे को हक़ीर जानना चाहता है दूसरे की निगाह में कि उसको ये खौफ़ है कि जिसको मैं हक़ीर बना रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर कोई क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर कोई
कोई चीज़ें हैं, तो वो दुनिया की निगाहों में आ जाए और मेरी वक़्त कम हो जाए। तो बेसिकली ये जो घमंड था हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने वही दुआ के अल्फ़ाज़ किए कि तुम याद रखना कि हर शख़्स की जो जो पकड़ है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ है, लेकिन अगेन जब एरोगेंस का दिल पे ग़लबा होता है, तो उस वक़्त इंसान को कुछ नज़र नहीं आता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस चीज़ से बचाए। तो बेसिकली ये तमाम मामला था, ये तमाम टर्निंग पॉइंट था कि जिसमें कि ये तमाम लोग मुब्तला हुए और उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात को झटक दिया और उस वो जो इनिशियल अज़ाब के जो आसार थे, उसको भी उन्होंने कुछ वार्निंग को समझा नहीं। और उस वक़्त भी एक बड़े इंटरेस्टिंग एक चीज़ सामने आती है और वो ये कि जब मामला बहुत ज़रा सीरियस होना शुरू हुआ, ज़रा इकोनॉमी वाइज़ वो फसल नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, पानी नहीं आ रहा था, ज़रा मुश्किलात पैदा होनी शुरू हुई। तो अपने ज़माने के रिवाज के मुताबिक उन्होंने कुछ लोगों को दुआ करने के लिए मक्का भेजा। ये रिवायात में बिल्कुल मिलता है। अरब कल्चर की मुख्तलिफ टेल्स में और मुख्तलिफ जगहों पर इसके मुहावरे भी कोट हैं। मैसेंजर्स ऑफ आद। तो मैं इसका मतलब ये हुआ यहाँ ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अभी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने में सदियाँ बाकी हैं। अभी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं पैदा हुए हैं। अभी तो उनको मक्का में छोड़ा नहीं गया है। अभी तो मक्का में पहली मस्जिद बनी ही नहीं है। तो कौम आद के लोग जो कि बुत परस्त हैं, जो कि अरब के बिल्कुल जनूब में, बिल्कुल साउथ में यमन के इलाके में वाक़ हैं, वो भी ये बिलीव रखते हैं कि जब कोई मुश्किल आएगी या जब कोई चीज़ होगी तो वो होली लैंड का सफ़र करते हैं और वो मक्का जाते हैं और वो मक्का के जो केयरटेकर्स हैं वहाँ पर उनके पास ठहरते हैं कि और स्पेसिफिकली कि वहाँ उसके पहाड़ों पे खड़े होके वो दुआ करने के लिए गए हैं। क्योंकि ज़ाहिर है उस वक़्त बिल्डिंग की सूरत में तो कोई इबादतगाह वहाँ मौजूद थी ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक़्त प्री इब्राहिमिक एरा में भी ये बात रिनाउंड थी, ये बात उस वक़्त की इंसानियत को पता थी कि जो मक्का का जो ये इलाक़ा है, ये जो वो जो पर्टिकुलर जगह है, वो होली लैंड है और वो समहाउ वहाँ पे दुआएँ कबूल होती हैं, वो इबादत करने की जगह है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हमको पता है कि अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बताया था, उन्होंने वो जगह इबादत के लिए मुख़्तस की थी। अहादीस में और मुख्तलिफ़ रिवायात में इस्लामिक तारीख़ की किताबों में ये बात भी दर्ज है कि कोई नबी और रसूल ऐसा नहीं गुज़रा जिसने हज ना किया हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो भी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने एक सफ़र मक्का का ज़रूर किया होगा। और हो सकता है उसी थ्रू से उनकी नस्ल में भी ये बात मौजूद हो और जब उनकी नस्ल के लोग ये कौम आद के लोग जब आबाद हों उनका जो बेटा साम था और फिर बाद में जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन आज तक ये बात भी पहुँचती रही कि मक्का इज़ अ प्लेस जहाँ पर दुआएँ कबूल होती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि वो लोग जो बुत परस्त भी थे, उनके भी अंदर कहीं बैक में कहीं सबकॉन्शियस में ये चीज़ मौजूद थी कि अच्छा अब मसला बहुत ही ज़रा सीरियस हो गया है तो लेट्स गो टू द होली प्लेस और वहाँ जाकर दुआ की जाए। तो हुआ ये कि जब वो आद के लोग जब वहाँ पहुँचे मक्का में तो इसमें तो रिवायात में ये मिलता है, मुख्तलिफ रिवायात थी अगर उनको मैं सम अप करूँ अल्लाह वल्लाह आलम बिस्सवाब कि उसमें से कौन-सी ऑथेंटिक है और कौन-सी नहीं। लेकिन ये तमाम स्कॉलर्स के यहाँ से ही ये तमाम डिटेल मिलती है कि वो वहाँ पर जो मक्का के जो मेज़बान थे, जो वाली मक्का उस ज़माने में होंगे, उन्होंने बड़ा अच्छा उनके साथ सलूक किया, उनको बड़ी मेहमान-नवाज़ी की, उनको अपने पास रखा और सो मच सो उनका इतनी दावत करी, इतना उनका खातिर-तवाज़ुन करी कि वो ये भूल ही गए कि वो किस सिलसिले में वहाँ आए थे। और फिर कुछ अरसे बाद जब उनको याद आया तो वहाँ वो उसमें ये है कि वो मोहरा की पहाड़ी या मक्का की पहाड़ियाँ होंगी वो। बहरहाल उन टीलों पे चढ़कर उन लोगों ने दुआएँ की। कहीं रिवायात में है वो 70 लोग थे, कहीं रिवायात में है वो कुछ और लोग थे। बहरहाल लुब्ब-ए-लुबाब इस बात का ये है कि उस कौम की जैसी भी सिचुएशन थी, लेकिन ये एक चीज़ उनके दरमियान मौजूद थी कि जब मसला आया, तो वो मक्का गए और वहाँ जाके उन्होंने टीले पे खड़े होके दुआएँ शुरू की और उस दुआओं के नतीजे में आसमान के ऊपर बादल ज़ाहिर होना शुरू हुए। रिवायत में तो यहाँ तक भी तफ़सील मौजूद है, वल्लाह आलम बिस्सवाब वन्स अगेन इट्स टू हार्ड टू फाइंड आउट क्योंकि इतनी ज़्यादा रिसर्च के बावजूद भी कहीं ये चीज़ नहीं मिल पाती है, कोई रेफ़रेंस कि कौन-सी चीज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन ये भी तवातुर से अगर आप भी रिसर्च करें तो तवातुर से आपको ये स्टोरी भी मिलेगी कि आने वाले जो बादल अपीयर होने वाले थे, उनमें से कुछ लाल बादल थे, कुछ ग़ालिबन सफ़ेद थे या येलो थे और कुछ काले थे। तो उनसे ये पूछा गया कि आपको कौन से बादल को चूज़ करना है और उन्होंने ये सोचा कि जो काले बादल हैं वो पानी से भरे हुए होते हैं, बरसात से भरे हुए होते हैं, उनमें बारिश होती है तो उन्होंने काले बादलों को चूज़ किया। तो बाकी बादल आसमान से
डिसअपीयर हो गया और ये काले बादल जो है ये छाने शुरू हो गए, वल्लाह आलम बिस्सवाब। और ये काले बादलों को आता देखकर ही वो जो मुसाफिर थे, जो मक्का में आए थे, उन्होंने दोबारा अपनी लैंड की तरफ सफ़र शुरू कर दिया और वो खुश हो गए कि बस अब बादल आने शुरू हो गए हैं, अब बारिश होगी और वो अपने इलाके की तरफ पहुँचना शुरू हो गए। यही इन्हीं काले बादलों के हवाले से ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस में है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब भी नबी नबी करीम जब भी मक्के के मौसम ऐसा होता था कि काले बादल छाने शुरू होते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेचैन हो जाया करते थे। कभी वो अंदर आते थे, कभी बाहर जाते थे और उनकी घबराहट उनके चेहरे पर और एक जो एक पैनिक का सा एक इफ़ेक्ट था, वो परेशानी का वो उन पे ज़ाहिर होता था। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि भई ज़ाहिर है मक्का तो वैसे भी बैरंग और बंजर जगह थी कि आप क्यों परेशान हो जाते हैं कि जब आप जो हैं इसको देखते हैं तो उस पे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको डर लगता है कि कहीं ये बादल कौम आद के बादलों की तरह ना हों। तो मतलब अगरचे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से वही पाते थे और उनको हर बात का इल्म था, वो ये जानते ही थे कि अभी तो मक्का पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब उनको तो फिर भी बहुत सारे गैब के इल्म थे, उसके बावजूद उनका उनकी हम्बलनेस का, उनकी आजिज़ी का और उनके खौफ का ये आलम होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रब ने मुझे वार्न भी ना किया हो और ये बादल आ रहे हों। और यहाँ स्पेसिफ़िकली जहाँ से मैं इस वक़्त बात कर रही हूँ, यहाँ तो ये कल रात का भी ये मामला था जिस वक़्त मैं ये स्पेसिफ़िक लेक्चर प्रिपेयर कर रही थी, उस वक़्त इस तरह बादल गरज रहे थे और इतना बड़ा तूफ़ान था कि लगता था कि शीशे भी टूट जाएँगे और ये सब तूफ़ान घर में दाख़िल हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको अपनी रहमत में और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बहरहाल वो तूफ़ान जो वो काले बादलों के जो थे वो आसार आ गए और आसार शुरू हो गए और जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन काले बादलों को देखा तो वो समझ गए कि बस अब ये टाइम आ गया है। उस वक़्त तक भी वो आखिर वक़्त तक प्रीच करते रहे और फिर वो तूफ़ान क्या था? व्हाट हैपेंड विद देम? तो कुरान ने कैसे बयान किया है? बेसिकली अगर कुरान की तमाम आयतों को जैसे कि हम तरतीब से जमा कर रहे हैं तो सूरह दारियात में आया नंबर 41 से 42 तक जो ये वो आयतें हैं जहाँ पर ये कैफ़ियत बयान की गई है कि क्या मामला उनके साथ हुआ। वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिम रिहल अक़ीम, अक़ीम यानी उनके ऊपर भेजी गई हवा, रिह हवा और अक़ीम, अक़ीम को ट्रांसलेट किया गया है नामुबारक। उर्दू ज़बान में इसका एक ट्रांसलेशन बांझ भी हो सकता है, जिसको हम ड्राई भी कह सकते हैं या बैरंग भी कह सकते हैं। बांझ का मतलब ये होता है कि अ वुमन व्हिच इज़ सपोज्ड टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सकती है तो वो बांझ है। तो रेन अ ब्लैक क्लाउड सपोज्ड टू गिव वाटर वो उसको मॉइस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसको भी उस बादल को भी अक़ीम कहा जाता है कि वो बाँझ था यानी उसमें पानी नहीं था, उसमें मॉइस्ट नहीं था, उसमें बारिश नहीं थी, तो वो हवाएँ आनी शुरू हुईं क्योंकि जब काले बादल आते हैं और उस वक़्त ज़रा-सी तेज़ हवा चलनी शुरू होती है, तो वो बड़ी भीगी हुई होती है, वो बारिश वो लबरेज़ होती है मॉइस्चर से, पानी के कतरात से। तो वो जो हवा थी, वो जो काले बादल आ रहे थे, लेकिन वो जो हवा थी, उसमें ठंडक और लताफ़त नहीं थी, उसमें उसमें वो एक खुशी वाली बात या कम्फ़र्ट वाली बात नहीं थी, बल्कि वो बाँझ थी, वो बिल्कुल ड्राई थी। तो एक बात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई कि वो हवा बिल्कुल ड्राई थी। दूसरे सूरह कमर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी कैफ़ियत बयान फ़रमाई है, इन्ना अरसलना अलैहिम रैहन सरसरन फ़ी यौमि नहसिन मुस्तमिर। और हमने उनके ऊपर मनहूस नहस मनहूस से है मन जैसे हम उर्दू में भी मनहूस कहते हैं, नहस यानी एक ऐसा शख्स जो बहुत नामुबारक है, जिसके आने से क घर में अच्छाई के असरात पैदा नहीं होते बल्कि बुराई के असरात पैदा होते हैं जिसकी वज़ह से इंसान के ऊपर भी अच्छा असर पड़ता नहीं है। तो हमने उस मनहूस दिन में यानी सख्त नहूसत का वो दिन था, एक आँधी भेजी। सरसरन कहते हैं, सरसर में ठंड भी है। नॉट कंफर्टेबल ठंड, वो वाली ठंड नहीं जो बारिश की हवाओं में हल्की-हल्की सी खुनकी होती है, बल्कि बहुत सख्त ठंड जो कि आपको बुरी महसूस हो रही होती है और बहुत तेज़। तो इसको आप हम गस्ट जिसे यहाँ पे कह सकते हैं यानी एक होती है स्टॉर्म होता है, एक गस्ट होता है अगर हम उसकी सारी तफ़सील में जाएँ हवाओं की जो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, तो ये बेसिकली सरसर है कि ठंडी हवा है और बहुत तेज़ हवा है। तो अब एक तेज़ और एक बहुत ठंडी हवा चलाई और उसने उखेड़े डालती थी, गोया उखड़ी और वो इस तरह पड़े हुए थे कि गोया उखड़ी हुई खजूरों के तने हों, यानी तेज़ भी वो कोई ऐसी-वैसी तेज़ नहीं थी। वो इतनी तेज़ थी वो हवा कि जैसे कि उनकी चीज़ें उखड़नी शुरू हो गईं। तो हम भी यहाँ पे मुख्तलिफ अपने सामने देखते हैं, कभी कोई हरिकेन आ जाता है, तो वो हरिकेन की वजह से क्या होता है कि वो दरख्त उखड़ रहे होते हैं, बिलबोर्ड उखड़ रहे होते हैं, मकानों की छतें उड़ रही होती हैं, तो
उस सेंस में हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक तो नंबर 1 वो हवा ड्राई थी, और फिर नंबर 2 बहुत ठंडी थी, और नंबर 3 वो बहुत तेज़ थी और बहुत नामुबारक थी, यानी वो बेरहम थी, बहुत मनहूस थी, और फिर वो उनको ऐसे उखाड़ डाल रही थी कि जैसे कोई वो खजूरों के तने। तशबीह किस चीज़ से दी गई है? खजूरों के तने से। खजूरों के तने सतूनों की तरह होते हैं, और उनको बड़ा नाज़ था अपने सतूनों के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट और मज़ीद क्या हुआ उनके साथ? नेक्स्ट जो बयान किया गया है सूरह अल-हाक़्क़ा आया नंबर 6 एंड 7 में बयान किया गया है, वअम्मा आदुन फ़अहलिकु बिरिहिन सरसरिन आतिया, कि वो जो जो ठंडी हवा थी वो बहुत तेज़, यानी स्टॉर्म की सूरत में थी, गस्ट की सूरत में थी, और फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ? सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियता अय्यामिन, 7 रातें और 8 दिन। तो सोचिए, जो हरिकेन्स को यहाँ स्पेसिफ़िकली जो वेस्ट में जो लोग रहते हैं, अमेरिका में और नॉर्थ कनाडा वगैरह में जो लोग रहते हैं, वहाँ यहाँ पर जो फ्लोरिडा के साहिल पे तो हरिकेन का एक मामला हम देखते रहते हैं। तो जो बहुत डेडलीएस्ट हरिकेन हो, अगर हम उसको तसव्वुर करें तो उसकी क्या सिचुएशन होती है कि उसमें छतों की छतें उड़ जाती हैं, उसमें बिलबोर्ड उखड़ जाते हैं, तमाम तार उखड़ जाते हैं, सड़कें उखड़ जाती हैं, और वल्लाही क्या-क्या चीज़ें उसमें तबाहियाँ आती हैं। तो उस हरिकेन का आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक तो वो अब तक हमने क्या-क्या पढ़ा कि एक तो वो हवा ड्राई थी, एक वो बहुत ठंडी थी, एक वो बहुत तेज़ थी, और फिर उसकी ये नहीं कि अगर इतनी बर्बादी लाने वाली हवा इतनी कुछ घंटे भी किसी शहर में चले, आज के जदीद टेक्नोलॉजी वाले शहर में भी अगर वो 1-2 घंटे से भी ज़्यादा चले, जो बड़े से बड़ा हरिकेन भी आता है, वो चंद घंटों में वो गुज़र जाता है। तो उसमें वो पूरे मीटेरोलॉजी वाले और वेदर फ़ोरकास्ट वाले मुस्तकिल उसे वॉच कर रहे होते हैं कि ये इतनी देर में यहाँ से गुज़रेगा, तो इतनी देर ठहरेगा, तो इतनी तबाही लाएगा। वो हवा 7 रातें और 8 दिन कंटीन्यूअस चली है। तो सोचने की बात है कि जो इतनी सख्त हवा होगी, उसमें क्या बचा होगा? तो उसमें आगे जो जो तबाही वहाँ आई है, उसको अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं, "ए मुख़ातिब, तो सुनो।" तो लोगों उसमें इस तरह से ढहे और मरे पड़े थे जैसे खजूरों के खोखले तने होते हैं। पिछली बार आयत में बताया कि खजूर के तने उखड़ गए, सतून, सतूनों पे बड़ा नाज़ था उनको। तो सतून वो उखड़ गए थे। तो एक तो हो गया उखड़ के गिरना, और एक अगर आप कभी किसी जगह आप सी साइड पे जाएँ या किसी ऐसी जगह पे आपको जाने का इत्तेफ़ाक हो, जहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हड्डियों के आर-पार हो रही है, जैसे वो सीने के अंदर से गुज़री जा रही है। तो वो खोखले हो गए, यानी हवा की शिद्दत इस लिमिट पे हो सकती है कि इंसान जो एक फ़िज़िकल बॉडी रखता है, एक उसका एक अपना वॉल्यूम है, एक उसका एक अपना बॉडी है, एक ठोस बॉडी है, वो उस ठोस बॉडी के अंदर से इस तरह गुज़र जाएगा कि वो उसको फोका करके रख देगा। तो ये इतनी ज़ालिम हवा थी वो। And the fourth thing which is established about those that azab is that Surah Hamim Sajda again Fussilat की आया नंबर 13 है, फन अरिदु फ़कुल अनज़रतुकुम साइक़तुन, फिर अगर ये मुँह फेरे ही जा रहे हैं तो तुम बता दो इनको कि वो एक ऐसे चिंगाड़, साइक़ा मतलब शदीद आवाज़, इस साइक़ा का लफ्ज़ जो है क़यामत के जो मनाज़िर हैं उसमें भी इस्तेमाल हुआ है कि एक इंतहाई हॉरिबल आवाज़, जैसे कभी बादल बहुत गड़गड़ाएँ या बहुत हो तो एक बड़ी खौफ़नाक सी आवाज़ पैदा होती है जो इंसान को डराने वाली होती है, तो वो भी उस अज़ाब में शामिल था। तो सो फ़ार सो अगर हम इसको कंक्लूड करें कि जो अज़ाब की सूरत बयान की गई है उन लोगों के ऊपर, उसका मामला ये है कि एक तो वो ड्राई एयर थी, फिर नंबर 2 वो बहुत तेज़ थी, नंबर 3 उसमें चिंगाड़ थी, और नंबर 4 ये कि वो उखाड़ के फेंके जा रहे थे जाने भी थी, और वो कंटिन्यूअस मुस्तकिल चलती रही थी। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी इम्पोर्टेंट ये एक हदीस है कि इसमें फरमाया है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जो तूफ़ान हवा का कौम आद के ऊपर भेजा था, वो अल्लाह सुब्हान तआला के पास जो हवा के तूफ़ान हैं, उसकी बक़दर एक अंगूठी के रिंग के बराबर था, एक अंगूठी के सुराख के बराबर था। अगेन आई रिपीट कि एक अंगूठी का सुराख, उसमें से कितनी हवा गुज़र जाएगी? एक अंगूठी के सुराख के बराबर था वो तूफ़ान, जो अल्लाह हवा के तूफ़ान अल्लाह के पास मौजूद हैं, उसमें से जो वो तूफ़ान कौम आद पर आया। तो एक बात तो ये कि जो डेडलिएस्ट हरिकेन या डेडलिएस्ट विंड स्टॉर्म, व्हाटएवर द स्टॉर्म हम अभी दुनिया की
کرنٹ تاریخ جو کہ ریکارڈڈ تاریخ ہے اس میں ہم سوچتے ہیں تو وہ طوفان بھی چند گھنٹوں سے زیادہ کا نہیں ہے۔ اور پھر پلس یہ کہ یہ طوفان ایک تو کنزیکٹو کنٹینیوس آیا تھا، اور اس کی شدت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتی ہے کہ جو اللہ کے پاس جو ہوا کے طوفان ہیں وہ اس کی اتنی اس کی وہ مطلب اس کے مقابلے میں اس کا ریشو ہے کہ وہ ایک انگوٹھی کے رنگ کے برابر تھا۔ تو اس صورت میں اگر ہم آج کی تھوڑا سا اگین گو ٹو دا ٹورڈز ا بٹ ہوا کے طوفانوں کا معاملہ کریں تو یہ ابھی کی بیسیکلی 2016 ہی کی یہ ریسرچ ہے کہ کوئی ایک ایسا بلیک ہول ڈسکور ہوا ہے۔ سائنٹسٹ جسٹ ڈسکورڈ اے بلیک ہول دیٹس بلاسٹنگ دا فاسٹسٹ اسپیس ونڈ ان دا نون یونیورس، اور یہ جو اسپیڈ ہے اس کی وہ 200 ملین کلومیٹر پر آور، ہوا کی اسپیڈ جو ہے 200 ملین کلومیٹر پر آور ہے۔ اگر 100 میل پر آور، ہمارا 100 میل پر آور سے اوپر جب ہوا بڑھ جاتی ہے تو ہم اسے طوفان کہتے ہیں۔ یہ 200 ملین کلومیٹر پر آور پر وہاں ہوا کے گسٹ چل رہے ہیں۔ تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ہے کہ اللہ کے پاس جو ہوا کے طوفان ہیں، یعنی یہ 200 ملین میں تو انسان کی ہڈیاں، اس کے خون، اس کی ناخن بھی اکھڑ جائیں اور وہ اس کے ایک ایک بال اکھڑ کے بکھر جائے جو اس ہوا کا پریشر ہوگا۔ تو بیسکلی یہ طوفان اور یہ عذاب آیا قوم عاد کے اوپر، اور اس عذاب کو اگر ہم اپنے آج کے جو ہمارا نون نالج ہے اس میں اگر اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو بیسکلی کیا ہوا ہے کہ ایک تو آیا ہے کہ ڈسٹ اسٹارم ہے، تو جو لوگ ڈسٹ میں رہے ہوں گے یا کبھی ایسی کوئی مووی دیکھی ہو یا ایسے کوئی آپ نے کسی ہسٹری چینل پہ دیکھا ہو کہ جب ریگستان میں بہت تیز طوفان، ہوا کا طوفان آتا ہے تو ظاہر ہو چونکہ اس میں وہ مٹی، وہ جو ریت ہوتی ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کے ہاں قحط تھا، ان کے ہاں بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، تو ظاہر ہے قحط میں زمین سوکھ جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے، تو جب وہ خشک ہوا آئی اور وہ تیزی سے چلنا شروع ہوئی تو وہ جو خشک زمین میں جو ریت کے ذرات تھے وہ اس کے اندر شامل ہونے شروع ہو گئے، تو وہ ڈسٹ اسٹارم ہو گیا قوم عاد کے پاس۔ وہ جو اسٹارم تھا وہ ڈسٹ اسٹارم میں کنورٹ ہو گیا۔ پھر وہ تھا کہ کالے بادل آ رہے تھے، تو جب کالے بادل آ گئے تو ڈارکنیس ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ تو بیسکلی ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں جب کبھی کہیں پہ اس طرح کا تھنڈر اسٹارم ہوتا ہے تو وہ کالے بادل آتے ہیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ پھر اس میں یہ ہے کہ ایک چنگھاڑ تھی، تو چنگھاڑ کیسے پیدا ہو رہی تھی اس میں کہ آج بھی یہ ہم اب تو سائنٹیفک فینومینا سے ہے، کیونکہ جب بہت ریت کے ذرات بہت تیزی سے ایک ہوا کے گسٹ میں جب گول گول گھوم رہے ہیں یا ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو وہ اتنی تیز اگر اس کی ہوا کی رفتار ہے تو وہ جو ذرات آپس میں ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں، جیسے ہم اسٹیٹک انرجی کہتے ہیں، اس سے ان کے اندر اسپارک پیدا ہوتا ہے، ایک چمک پیدا ہوتی ہے، ایک کڑک پیدا ہوتی ہے۔ یہی فینومینا ہے کہ جب بادل ان میں آپس میں ہوتے ہیں تو کڑک پیدا ہوتی ہے، تو اس کڑک سے وہ ایک بجلی سی چمکتی ہے اور اس سے وہ ایک شدید چنگھاڑ کی سی ایک بہت ہی بھیانک آواز کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو ہم اب بھی یہاں پر مشاہدہ کر سکتے ہیں کسی لیول پر اس کا۔ تو بیسکلی وہ ایک ڈسٹ اسٹارم تھا، اس میں کالے بادل تھے تو اندھیرا تھا، اور چونکہ اس میں ریت کے ذرات آپس میں ٹکرا رہے تھے تو یہ ہمیں ایک سینس مل جاتی ہے کہ یہ چیز اس میں چنگھاڑ پیدا کر رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جیسے آج بھی ہم آپ نے دیکھیں گے ٹورنیڈوز، وہ ایک ایسی ہوا تھی کہ جو کھوکھلا کیے دے رہی تھی۔ تو ہوا اگر ایک ڈائریکشن میں چلتی ہے تو وہ ایک ڈائریکشن میں اور وہ ان کو اکھیڑ کے رکھ دے رہی تھی، تو اکھیڑتی جو ٹورنیڈوز کی جو تباہی ہے، جو ایک اگر ہم اس عذاب سے ریلیٹ کر سکیں، تو بیسکلی وہ چونکہ چکر میں گھومتی ہے گول 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 گول، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ درختوں کو اکھیڑ دیتی ہے۔ اگر ایک ڈائریکشن میں ہوا چلے گی تو وہ ایک طرف کو جھکا دے گی، لیکن جو یہ اکھڑنے کی کیفیت ہوتی ہے تو جو تباہی ہم ٹورنیڈوز میں دیکھتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ڈھائے پڑے تھے جیسے کھوکھلے ہو گئے، تو یہ والی جو کیفیت ہے یہ ٹورنیڈو کے حساب سے بالکل میچ ہوتی ہے اور اس سے جا کر ملتی ہے۔ تو وہ ایک شدید ٹورنیڈو تھا، وہ ایک شدید چنگھاڑ کی وجہ سمجھ میں آئی کہ وہاں پر چونکہ ریت تھی تو آپس میں ٹکرا رہی تھی اور اس کی وجہ سے آگ بھی پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ڈرائی تھا اور خشک تھا، اور یہ کیفیت جو تھی وہ کافی دیر تک، اب جو ہم اگر ٹورنیڈو کو دماغ میں لائیں تو ہمیں کو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہاں وہ جو تباہی ہوئی تو یہ کس طرح سے ہوئی ہوگی۔ سو لاسٹ بالکل آخری بات، وائی ونڈ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم عاد کو تباہ کرنے کے لیے یہ ایک پرٹیکولر اسٹائل
ऑफ अज़ाब क्यों चूज़ किया और इसको इतनी डिटेल से कुरान में क्यों बयान किया। हम हमेशा ये बात करते हैं कुरान इज़ नॉट द बुक ऑफ द स्टोरी और कुरान में बहुत सारी स्टोरीज़ जो बड़ी डिटेल में भी हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उसकी बहुत सारी डिटेल्स मौजूद नहीं हैं, वो कहाँ पैदा हुए थे, वो कब पैदा हुए थे, मतलब जो एक कहानी के बाकायदा एक उसके पार्ट्स होते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ रही होती है। लेकिन बहुत सारी स्टोरीज़ कुरान में ऐसी हैं जिसका आगे-पीछे की बहुत सारी बातें मौजूद नहीं होती हैं, बस बीच की एक बात मौजूद होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो बात कुरान में बयान कर दी जाती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब उसको कट नहीं किया गया। तो अब ये आप देख रहे हैं कि जितनी डिटेल बयान की गई है कौम आद के मुतालिक जो उसका अज़ाब आया है, क्यों? तो उस पे जो ये तमाम स्कॉलर्स की तमाम तहकीकात को पढ़ी वो था और उसमें वही है इरमा ज़ातिल इमाद। वो बड़े बड़े गरूर था उनको अपने सतूनों के ऊपर। वो खुद भी बड़े लंबे, चौड़े, ऊँचे सतून की तरह थे और उनके पास वो खजूर के दरख्तों की बार-बार उनके ऊपर मिसाल दी गई कि वो खजूर के दरख्तों को हाथ से उखाड़ लेते थे और बाद में वो खुद ही खजूर के दरख्तों के तनों की तरह पड़े हुए थे। तारीख़ में उनकी मिसालें भी ऐसे दी जाती हैं कि वो खजूर के तनों के बराबर थे और बेसिकली वो बहुत पसंद करते थे पिलर्स को, सतून को बनाना। तो वो खुद सतून की तरह थे। खजूर के दरख़्त सतून की तरह होते हैं, जिसको कि वो उखाड़ लेते थे और वो सतून की तरह से पिलर बनाना पसंद करते थे और एंड ऑफ द डे उनको उसी सतून के तर्ज़ यानी टॉर्नेडो जो बिल्कुल एक दिखने में एक सतून होता है, उसी के तर्ज़ ने उनको तबाह कर दिया और वो जो बड़े-बड़े कंक्रीट पिलर्स वो बनाते थे, जिनके मुतालिक वो सोचते थे, अब हमें हमसे बढ़कर ताकत वाला कौन होगा? उसको तबाह करने के लिए अल्लाह ने क्या चीज़ भेजी? हवा, जिसका कोई वजूद भी नहीं है, जो दिखने में नज़र तक नहीं आती। उनको किसी बम से, किसी बहुत बड़ी तीर तलवार से या किसी बड़ी खोदने वाली चीज़ से या बड़े पत्थरों से तबाह नहीं किया गया उनको। उनको हवा से तबाह किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये सुन्नत है कि जितना बड़ा गुरूर होता है, उसको उतनी छोटी सज़ा दी जाती है। नमरूद का गुरूर था कि मैं बादशाह हूँ, उसको मच्छर से सज़ा दी गई। फ़िरौन का गुरूर था कि मैं अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे आला हूँ, उसको समंदर की तहों में उतार दिया गया। ये अपने आप को कहते थे, हमसे ज़्यादा अच्छा बिलर कौन कर सकता है? तो उनको हवा के सतूनों से ही तबाह कर दिया गया। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ इरम ज़ातिल इमाद। वो इरम जो सतूनों वाले थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको इससे इब्रत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस पे हमारी आँखें खोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इससे हमें अमल में हमारी हिदायत को हमारे अमल में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।